Okay, today we'll study about CFT of coordination compound. This is the last part. Okay, all of you give heading crystal field theory. All of you give heading crystal field theory. In bracket you write CFT. ठीक, write the first point. Right, it considers the metal ligand bond. It considers the metal ligand LIGAND, the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions, arising clearly from electrostatic interactions between metal ion and ligand, between metal ion and ligand. Okay, second point you write ligands are treated as point charges, in case of anions, are treated as point charges in case of anions, or point dipoles in case of neutral molecules, Okay, third point you write the 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom, the 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom, slash ion have same energy, bracket में लिखो they are degenerate, have same energy, in bracket you write they are degenerate. Next point you write fourth point, this degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charges surrounds the metal atom slash ion, Next point you write fifth point, when this negative field is due to ligands, in bracket you write either anions or negative ends of dipolar molecules, bracket close करो, in a complex, comma, it becomes asymmetrical, and the degeneracy of d orbitals is lifted. It becomes asymmetrical and the degeneracy of d orbitals is lifted, which results in splitting of d orbitals. Written 5 पॉइंट, उसके बाद राइट 6th पॉइंट नहीं है, खाली ऐसे ही लिखो this splitting of the degenerate levels due to presence of ligands in a definite geometry, in a definite geometry
is called CFT. ब्रैकेट में राइट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग is called CFT, crystal field splitting. Okay, I'll explain you now. So देखो, this is the spectrochemical series which is considered in CFT. ये ऑर्डर तुम्हें दिया गया है. H2O के बाद से सारे strong ligands होते हैं, ठीक है? Strong ligands क्या करते हैं? Heavy repulsion, more repulsion. Strong ligands क्या करते हैं? More repulsion. ज़्यादा repulsion के चलते, more repulsion के चलते क्या होता है? Pairing up takes place. मैंने बताया था already, VPT में. Pairing up takes place. ठीक है? और weak ligands pairing up नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये सीरीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसको नोट कर लो. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ इन ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज CFT इज यूज्ड. ठीक है? सो केस 1 आई विल एक्सप्लेन CFT इन ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज. ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्टाहेड्रल क्या होता है. मेटल ऐसे होता है. ऑक्टाहेड्रल मतलब लिगैंड्स इधर भी, इधर भी, इधर. Like this, ligands are there. This is the octahedral shape or not? तो ligands are approaching like this. ठीक है? कोई भी नॉर्मल मेटल जो होता है उसके चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं कि नहीं? मेटल के चारों तरफ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड, है कि नहीं? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? डी ऑर्बिटल जिसका है उन्हीं के बारे में. मेटल्स हैविंग डी ऑर्बिटल मतलब 21 से 30 जो डी ऑर्बिटल वाले मेटल्स है ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो वो सारे के बारे में हम लोग बात करते हैं. इट शुड हैव डी ऑर्बिटल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड. तो जब भी लिगैंड्स आएंगे, लिगैंड्स क्या होते क्या हैं? दो तरह के लिगैंड्स होते हैं. यू ऑल ऑफ यू नो. लिगैंड्स आर व्हाट एक्चुअली, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया. दे आर ईदर नेगेटिव आयंस, या तो क्या बोल सकते हैं एनायंस, या तो क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं that they are dipoles. क्या होते हैं वो सारे? डाइपोल्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत होता है. अभी जितना भी मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल में लिखा है उस सब में इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है. तुम्हें पता है क्लोरीन मतलब 7 Cl- 8 इलेक्ट्रॉन, NO2 में इलेक्ट्रॉन, सब में लोन पेयर है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और इलेक्ट्रॉन कुछ अप्रोच करेगा तो रिपल्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. अभी तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल्स के शेप अलग अलग होते हैं. जैसे कि दिस इज व्हाट, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होने से दिस इज व्हाट dxy, है ना? अगर ऐसा है y एक्सिस एंड z एक्सिस देन दिस इज व्हाट dzy. एंड अगर ये x एक्सिस ये z एक्सिस में ले लो देन these आर dxz. ठीक, ये तीन हो गए. और भी दो होते हैं. और एक क्या होता है ऐसे, this is dx square minus y square, है ना? this is x axis, this is y. और एक होता है suppose this is z axis, this is what dz square. all of you know. so इससे पता चलता है इंटरएक्सियल कौन से हैं? d orbitals. इंटरएक्सियल d orbitals कौन है? तीन तो है. they all are dxy, dyz and dzx. एंड एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड्स इंटर एक्सियल अप्रोच ज्यादा कर रहा है कि एक्सियल में ज्यादा कर रहा है? इंटर एक्सियल ज्यादा अप्रोच कर रहा है. तो किसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा? इनको. तो सफर्स मोर रिपल्शन. दे सफर मोर रिपल्शन. एंड ये जो एक्सियल है ये क्या हो जाएंगे? सफर्स लेस रिपल्शन. तो ये दोनों दो ग्रुप करते हैं. ठीक है ना? अभी के लिए इतना लिखो, फिर देन आई विल एक्सप्लेन कि क्यों जंप होता है, क्यों लिफ्ट होता है एनर्जी, और कैसे स्प्लिटिंग होता है. ठीक है, देखो इसको पहले. तो अभी एज आई सेड लिफ्ट हो रहा है, मतलब तुम पहले केस में समझ लो सारे डी ऑर्बिटल सपोज ग्राउंड स्टेट में, ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर इन, ऐसे में 5 डी ऑर्बिटल्स बना है ग्राउंड स्टेट में. जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं रिपल्शन तो होगा. रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ता है कि घटता है? झगड़ा जहाँ होता है वहाँ हाई एनर्जी रहता है. अगर झगड़ा नहीं हो रहा पूरा एनर्जी, वहाँ गर्मी नहीं लगता है, तो पूरा शांत. पर जब झगड़ा लड़ाई होने लगता है मतलब रिपल्शन, एनर्जी गेट्स लिफ्टेड अप. तो यहाँ से एनर्जी लिफ्ट हो जाता है.
और पांचों के पांचों यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सबकी एनर्जी लेवल सेम होती है, बट यहाँ से जब इसको बोलते हैं डीजेनरेसी, डी ऑर्बिटल्स का डीजेनरेसी। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी लिफ्टेड अप क्यों? ड्यू टू रिपल्शन किसका? ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लिगेंड्स। अब इनमें एक जो ये एवरेज एनर्जी आता है उसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर, जो एवरेज एनर्जी होता है। तो ये पांच जो भी हैं, ये पांच का नाम लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। इसमें ज्यादा रिपल्शन किसको मिला था? ये तीन को जो इंटरएक्सियल थे। तो वो जिसको ज्यादा रिपल्शन मिला उसका एनर्जी क्या होगा? और ज्यादा। तो ये एवरेज था, एवरेज से ऊपर में कौन रहेंगे? तीन, क्योंकि इन तीनों को ज्यादा रिपल्शन मिला था, dxy, dyz एंड dzx। ठीक है ना? और also you can take little bit backward if you want to cover everything। तो तीन का एनर्जी क्या हो गया? ज्यादा, ड्यू टू मोर रिपल्शन। और यहाँ से दो का एनर्जी नीचे आएगा ड्यू टू लेस रिपल्शन, क्योंकि वो तो एक्सिस में है ना, तो वो भी साइड में मेंशन कर देना है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इनको कम रिपल्शन है तो वो नीचे एनर्जी आ गया, और इन तीनों का एनर्जी ज्यादा हो गया। ठीक है? तो अब इनका भी नाम होता है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स जो आए इनका भी नाम है और इसका भी नाम है। ये जो टोटल एनर्जी होता है ना, दिस इज द फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इस टोटल एनर्जी गैप को हम लोग बोलते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, तो आई विल टेक डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट इज व्हाट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर octahedral complex, for octahedral complex। और अगर इस एनर्जी को तुम्हें जानना है तो तुम उल्टा देखो, यहाँ पे 2 है तो दिस विल बी 2/5 ऑफ डेल्टा नॉट। और ऑपोजिट में इसको अगर देखना होगा तो ये कितना है? वहाँ पे 3 है, तो 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट, क्योंकि टोटल डेल्टा नॉट है। सो दिस इज द एनर्जी गैप। समझ गए? नोट करो। ये जो ऑर्बिटल्स अभी होते हैं ना, इनका भी नाम होता है। ठीक है? तो हम लोग Eg बोलते हैं, एक को Eg, एक को T2g। तो दिस वन इज T2g एंड दिस वन इज Eg। ठीक है? सो अर्लियर तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया? VBT में। ठीक है? और अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? CFT। अर्लियर तुम d ऑर्बिटल सपोज लेके रखते थे, ऐसे VBT में तो सारा एक साथ। ठीक है? सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो कैसे रखते थे? 1 2 3 4। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा बदल गया, ऊपर में कौन आ गया? Eg, है ना? और नीचे कौन आया? T2g। तो सपोज यहाँ पे मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे 4 क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स करता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे सपोज मैं बोलूंगा 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो तुम्हें कंफ्यूजन है 1 2 तीसरा इधर भरे या तीसरा को पेयर अप करें। सो हियर चेंजेस डू कम। सो थर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी डिसाइडेड where it should go। ठीक है? 2 ऑप्शन होता है, पेयर अप कहां पे हो सकता है? इन T2g, या तो फ्रेश फिल अप इन Eg। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, फ्रेश फिल अप Eg में करना है कि पेयर अप करना है। तो फ्रॉम देयर अ न्यू कॉन्सेप्ट कम्स पेयरिंग एनर्जी। समझ में आया? पेयरिंग एनर्जी को लेके हमें समझना है, इफ पेयरिंग एनर्जी एग्जिस्ट व्हाट विल हैपन टू द थर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कैसे आगे जाएगा कि नीचे रहेगा, वही समझना है। फर्स्ट नोट दिस टर्म। यहाँ पे तो सिंपल हम लोग डाल ही दे रहे थे थर्ड को ऐसे, फिर फोर्थ फिफ्थ फिर सिक्स्थ से सोचते थे पेयरिंग अप एंड डाउन, पर यहाँ पे सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज केस 2। ओके, CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल ऐसे रहता है, लिगेंड। सो तीनों लिगेंड्स हमें दिख रहे हैं, मोर लिगेंड्स आर इंटरएक्सियल। सो यहां पे क्या लिख देंगे, लिगेंड्स आर अप्रोचिंग व्हाट, इंटरएक्सियल। इंटरएक्सियल मतलब इंटरएक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, पास्ट वीडियो में बताया गया है। इंटरएक्सियल डी ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, dxy, dyz एंड dzx। एंड dx² -y² एंड dz², ये क्या है, एक्सियल, एंड ये इंटरएक्सियल होते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ इंटरएक्सियल देयर विल बी मोर रिपल्शन, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स अप्रोच कैसे कर रहे हैं, इंटरएक्सियल। तो यहां पे लिख देंगे ये क्या सफर करेगा, मोर रिपल्शन, एंड दिस एक्सियल सफर्स लेस रिपल्शन। अंडरस्टूड। तो जब भी यहां पे स्प्लिटिंग होगा कैसे होगा, जैसे कि अभी ग्राउंड स्टेट में है, पांचों डी ऑर्बिटल्स आर इन ग्राउंड स्टेट, तो 5 से अभी लिफ्ट होगा एनर्जी लिफ्ट। एनर्जी लिफ्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन तो हो ही रहा है, लिगेंड्स आएंगे तो रिपल्शन होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एनर्जी लिफ्टेड। और यहां पे सारे ऑर्बिटल्स लिख दो, dxy, dyz, dzx, dx² -y² एंड dz²। अब नाउ दिस इज, यू नो, दिस इज द बैरीसेंटर, एवरेज एनर्जी जो बैरीसेंटर कहते हैं। तो इंटरएक्सियल है तो इन तीनों को ज्यादा रिपल्शन सफर करना पड़ रहा है, तो जिसको ज्यादा रिपल्शन का सफर करना पड़ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स, और जिसको कम रिपल्शन सफर करना पड़ रहा है वो नीचे चला जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स। बिकॉज टेट्राहेड्रल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, T2, G नहीं है, T2। और ये E, सिर्फ E, समझ में, G नहीं लगेगा, जो ऑक्टाहेड्रल में G यूज करते थे अब यहाँ नहीं लगेगा, दिस इज T2 एंड दिस इज E। और ये टोटल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा T, क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना, तो CFT एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है ना, CFT एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल सकते हैं। एंड वेरी इजी टू राइट दिस, क्योंकि 3 ऊपर है तो दिस पार्ट इज 2/5 डेल्टा T, एंड यहाँ 2 नीचे हैं तो दिस इज 3/5 डेल्टा T। क्लियर, या एनी डाउट, यहाँ 2 ऑर्बिटल्स, वहां पे 3 ऑर्बिटल्स। क्लियर, फटाफट लिखो इसको। नेक्स्ट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे भी वापस लेंगे, डेल्टा P इज व्हाट, पेयरिंग एनर्जी, एंड डेल्टा T इज CFT स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल एंटिटीज या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2 केस बन सकता है एज एक्सप्लेन। इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा T, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो डेल्टा T इजी रहेगा। तो डेल्टा T में ऊपर में क्या था, 2 था, या कितना का था, 3। सोचो जरा, रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा, इंटरएक्सियल में ज्यादा, तो 3 ऊपर रहेंगे, दिस वाज व्हाट, T2, एंड नीचे में कौन था, E। ठीक है, तो सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, मैं बोल रहा हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन का सोचना है, क्योंकि ये गैपिंग कितना था, डेल्टा T है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर अप होगा क्या, जो चीज ज्यादा है वो नहीं होता है, क्योंकि एज एक्सप्लेन महंगा चीज हम लोग नहीं प्रेफर करते खरीदने के लिए, जो कम एनर्जी से हो सकता है वही प्रेफरेबली होगा। तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है तो डेल्टा T इजियर है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, इधर जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन जंप्स टू T2, समझ गए। बट इफ, मैं यहाँ पे इफ लिख रहा, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा T, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर अप होना बड़ा आसान है। सेम यू मेक अगेन 3 to यहाँ बनाओ, T2, दिस वन इज E, गैपिंग इज डेल्टा T। तो इस केस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दिया है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जंप्स होगा, नहीं होगा, 1 2, पेयरिंग एनर्जी कम है तो इजीली पेयर अप हो जाएगा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स अप रेदर देन जंपिंग, पेयर्स अप इन E। तो हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E में 3, T2 में 0, और यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E में 2 एंड T2 में 1। समझ पाए, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन हाउ यू राइट। क्लियर,
अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है, नोट करो. तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड CFT इन octahedral complex. I'm giving you just a brief. Octahedral में metal is surrounded by ligands like this. तो ये ज्यादा एक्सियल होते हैं, तो ligands का अप्रोच जो है is more on axis. तो ligands approach more on axis. तो एक्सिस में आएगा तो D का कौन सा ऑर्बिटल्स एक्सिस में है? dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz². तो ये क्या थे? एक्सियल थे. एंड इंटर एक्सियल कौन थे? dxy, dyz एंड dzx. तो ये इंटर एक्सियल थे. तो जो एक्सियल थे दे सफर व्हाट? मोर रिपल्शन, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल में ज्यादा अप्रोच है, तो मोर रिपल्शन एंड दे सफर व्हाट? लेस रिपल्शन. ठीक है, तो दे सफर लेस रिपल्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है? डी के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे कितने थे? 5 इन ग्राउंड स्टेट. अब वो एनर्जी लिफ्ट हो जाएगा, वही पांचों का एनर्जी लिफ्टेड. क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्शन. व्हेन लिगैंड्स आर अप्रोचिंग, लिगैंड्स आर लोन पेयर, सो दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम. तो आई कैन राइट हियर व्हाट? एनर्जी लिफ्टेड ड्यू टू रिपल्शन. And this average energy level is called what? Barycenter here. जैसे टेट्राहेड्रल में होता है सेम कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे एक्सियल में दो जन हैं जो रिपल्शन ज्यादा सफर करते हैं, तो ये दो ऊपर आ जाएंगे, दो ऑर्बिटल्स, और नीचे कौन चले जाएंगे? 3 ऑर्बिटल्स, बिकॉज दे सफर लेस रिपल्शन. ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऊपर में कौन रहेगा? E. और टेट्राहेड्रल में, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में नीचे में कौन रहेगा? T2. बट ऑक्टाहेड्रल केस में वी से G भी लगाते हैं. ऑक्टाहेड्रल बड़ा है टेट्राहेड्रल से, तो उनके लिए G भी लगाते हैं, Tg T2G. ठीक है, एंड दिस गैपिंग इज नथिंग बट डेल्टा नॉट. यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स हैं, तो दिस इज व्हाट? दिस गैपिंग इज 3/5 डेल्टा नॉट. एंड यहाँ पे 3 है, तो ये गैपिंग 2/5 डेल्टा नॉट. तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा, पेयरिंग कॉन्सेप्ट. इफ डेल्टा P इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, सोच लो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया तो पेयर अप होगा क्या? नहीं होगा. पेयर अप नहीं होगा तो कैसे रहेगा? देख लो, दो ऊपर में, तो दैट इज Eg T2G. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो पेयरिंग एनर्जी तो ज्यादा है, पेयर अप तो नहीं होगा, तो 4th इलेक्ट्रॉन गोज टू Eg. तो 1 2 3 और चौथा हम इधर भेजेंगे. बट अगर पेयरिंग एनर्जी लेस देन डेल्टा नॉट होता तो क्या होता? देख लो, तो वापस हमने यहाँ बनाना है 2 और यहाँ पे 3 जैसे था यहाँ पे. दिस इज Eg, दिस इज T2G. तो यहाँ पे भी मान लो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयर अप होना पसंद करेगा. जो कम है वो होगा. तो पेयरिंग एनर्जी इज लेस, तो क्या होगा? 4th इलेक्ट्रॉन गोज टू वेयर? पेयर अप, गोज टू पेयर अप. तो 1 2 3 4. तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? T2G में कितना है? 3. Eg में कितना है? 1. बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? T2G में कितना है? 4 और Eg में कितना है? 0. So this is the configuration. Understood how it has to be written? Clear? या any doubt? नोट कर लो.